Good evening, everyone. Let's wait for 2-3 more minutes to for others as well. Then I'll start. Okay, because the new topic is going to start. Rather, it's a new unit, so student have to be there. I don't know why they are not joining on time. Okay, now I think we should start now because it's already been 3-4 minutes. Let me share the screen first, then we'll start. The screen is visible to all of you. Yes, ma'am. Okay. So now, yeah, today we are having our unit number 2. Unit 2. Okay. So first will be obviously lecture 1. Let me call it 2.1, like second unit and first lecture. Okay. The first lecture of second unit. So our second unit is a partial differential equation of order 2. Okay. So you can say that second order PD. Fine. So the unit number 2 is second order PD. Okay, it means second order partial differential equation. So here is a unit number 2. So let's see. अभी तक अपने first order का means what, max to max, whatever we have studied, that was du upon dx, du upon dy, that kind of thing we had. It means that the order of these differentiation were 1 till the in the first unit. Now we will see that kind of this one, d square u upon dx square. So now the order has become 2. Okay, and this way also d square u upon dx dy, या deba, agar in terms of partial derivative you want to say, then you can use deba x deba y. So that way also you can write. So this is obviously of order 2. Or suppose it is du upon deba u upon deba y square. This also, the order of this differentiation is 2.
Fine. So these all terms along with the degree 1, we are order 1 we are going to use. Fine. So the second order partial differential equation of two independent variable will be two only, x and y, and the others will be the dependent on x and y. ठीक है? So क्या हो जाएगा? Partial differential equation of second order for function of two independent variable. Two independent variables कौन कौन से होते हैं? x and y in form of, देखो क्या होगा, r plus s small s plus capital T small t plus function of x, y, u, p, q equal to 0. This is the main standard form of second order PD. जैसे कि हमने फर्स्ट ऑर्डर पीडी का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर पीडी, where now the few things you can see, these are not familiar to you, it might be. So small r, what is small r? Small r is nothing but deba square u upon deba x square. It is the second order derivative of u with respect to x, or you can call it uxx, but because du अपॉन dx को हम, या फिर डेबा u अपॉन डेबा x को हम क्या बोलते हैं? ux बोलते हैं. सो दो बार डिफरेंशिएशन करोगे तो पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में उसको कैसे लिखते हैं? uxx डबल टाइम्स. ओके. Similarly, s equal to what? I am talking about the smaller one, smaller r, smaller s and t, because ये capital R S T तो क्या है? उनके कोएफिशिएंट्स हैं. ठीक है. तो s small s equal to क्या होगा? It is deba square y upon, sorry, deba square u upon, क्योंकि u किस पे डिपेंड करता है? x and y पे. So this is deba square u upon deba x deba y. This is s. मतलब एक बार u का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एंड देन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. Okay, so that is your smallest. Now t is what? Deba square u upon deba y square. It means double derivative with respect to y of किसका? u का. So that t will be the second derivative. हाँ, अगर s को आपको लिखना है तो you can write u x y in this form, and t को आपको लिखना है तो you can write u y y. So r होता है u x x, t होता है u y y. It means double derivative with respect to y, and this is double derivative with respect to s, sorry, x, and s होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन y, या फिर y एंड x. एक बात याद रखना, ये दोनों सेम होते हैं, वेदर यू फाइंड u x y और यू फाइंड u y x, बोथ आर सेम. ठीक है. तो दोनों क्या होंगे? s होंगे. पहले आप x के रिस्पेक्ट में करो देन y, या फिर पहले y देन x, तो बोथ विल बी सेम. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. So you understood the basic concept, like the terms, what terms is denoting what. Now coming towards the RST. ये भी जो RST है, मतलब जो capital letters है, you can see that these are the coefficients of small r, small s and small t. So ये होते क्या है? Actually these are continuous in nature. Okay, continuous functions of किसके होंगे? x and y. So these are continuous functions of x, y only. So RST must be some of the function in terms of x and y, and sometime maybe constant as well. Constant भी हो सकते, because all constant are continuous. So there should be, by default, it will be like continuous. Okay. So these are the continuous functions. So are you done with the basic standard form of the second order partial differential equation? Clear na everybody? So this is the form. Now let's do the classification of second order partial. जैसे हमने first order का क्या क्या पढ़ा था? There were kind of 4 type of different first order partial differential equation, that is quasi-linear, semi-linear, linear and non-linear. So we basically linear वाले में हम लोगों ने main quasi and semi पढ़े थे, and later on we have studied the non-linear partial differential equation. So that was the classification of the first order partial differential equation. Now let's see what is the classification of the second order, like how it is classified. Okay, the second order. So what we will do? Classification.
Classification of second order PDE. Is that clear? It is the classification of second order PDE. So let me call it equation number 1. So see, equation 1, it is classified into 3 main categories, that are, those are hyperbolic, parabolic and elliptic. So now they have certain names. Equation number 1 is said to be सबसे पहला है hyperbolic. At a point obviously x comma y in the domain, क्योंकि x comma y का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, हमने इसमें पढ़ा था, x y का डोमेन अगर 2D हुआ, x y प्लेन हुआ तो उसका डोमेन को हम d से डिनोट करते हैं, x y u के डोमेन को हम u और d1 से डिनोट करते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, इन द डोमेन d if, तो हम इसको हाइपरबोलिक कब बोलेंगे, when, इस कंडीशन को यू नीड टू रिमेम्बर, s स्क्वायर minus 4rt is greater than 0. अगर आपने s square minus 4rt after comparing the whatever equation is given to you, उसको अगर आपने main equation से equation 1 से compare किया, and then you will get the value of x s rst and you will put in this equation. If that term you will get greater than 0, means some positive value, so you will call the given equation is the hyperbolic. Okay, clear na? And later on I will give example as well, then you will better understand. Second है, इसको parabola कब बोलेंगे? So it is called parabolic at point x comma y in the domain d if, तो इसको parabola कब बोलेंगे? When s square minus 4rt equal to 0 होगा. अगर s square minus 4rt आपने find किया and you get exactly it is 0, so it will be called a parabolic. Okay, third वाला है, it is called elliptic at a point x comma y in domain d if, तो last condition क्या बची है मेरे पास, s square minus 4rt is less than 0. This one अगर less than 0 आया मतलब कोई नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा, और लेस देन 0 मतलब कुछ नेगेटिव नंबर आएगा आपको, है ना. तो अगर नेगेटिव नंबर आपको मिलता है तो इट मींस यू विल कॉल द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट अ इलिप्स. ओके, so these are the 3 condition you need to remember for the second order PDE. ठीक है, so now let's take some example. What I'm taking here is r minus t equal to 0. So can you compare this with equation number 1? देखो r जो small r का कोएफिशिएंट है that is capital R, small t का कोएफिशिएंट कैपिटल T and small s का कोएफिशिएंट कैपिटल S, and बाकी का जो फंक्शंस है उसको हम सब f में काउंट करेंगे. So here we are given only 2 terms. So what is the value of r over here? Tell me. What you can see, the coefficient of small r is what? 1. So I'll say r equal to 1. Isn't it? Is that clear, guys? Yes, na? Yes. Sometime beach mein orally you can reply me, because I will feel that yeah I'm like in the class live session. That's why, like in between some of the time, not every time, no need to unmute, but yeah, because there will be a feel na of the live session, कुछ तो होना चाहिए, पता चलता है, फिर otherwise ऐसा लगता है कि हाँ मैं बोल रही हूँ, nobody is listening to me, kind of that. But anyway, I know you people are listening and you are quite sincere. So t equal to, अच्छा बताओ r तो 1 है and s equal to कितना है बताओ फिर मुझे, what is the capital S? Can you see here any term like containing small s? No, ma'am. तो स्मॉल s ही नहीं है तो फिर उसका कोएफिशिएंट भी नहीं होगा, तो इट मींस कैपिटल S इक्वल टू कितना है, 0 है. एंड t इक्वल टू, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल t? -1. It is -1, so I got t equal to -1. Now
I will put in this equation s square minus 4rt. So s की जगह तो आएगा 0 का square minus 4r. Instead of r, I'll write 1, and instead of t, I'll write minus 1. So I get 4. I'll get 4. 4 is greater than 0 or less than 0? This is greater than 0, positive number. So it means what? The given equation is of, which kind of equation is this? Hyperbolic, elliptic, या फिर parabolic? Hyperbolic. It will be hyperbolic, okay, because it is greater than 0. So the equation is hyperbolic. तो आपके पास ना आपको इक्वेशन दी रहती है, and you will have the options of different hyperbolic, parabolic, elliptic, and none of the above, or some other circle, maybe some other value. So you will have to recognize, like identify, so which kind of equation is this. So that you will do by applying the condition. तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि s है क्या, r क्या है, t क्या है. These are nothing but the coefficient of the respective smaller, like lower case rst, उनके coefficient होते respectively. That's it. Okay. So these are very, very simple ones. Second wala hai, suppose I'm taking, okay, they have given, okay, now tell me what is the value of small r, sorry, capital R. The coefficient of small r is 1. Capital S, there is no term of small s, so it will be 0. Capital T, इसका हो जाएगा 1, because nothing else. Now ये जो x square है, इसके होने से नहीं होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, because हमें सिर्फ RST से ही मतलब होता है. तो इसके लिए ये इस टर्म का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, because I just want s square minus 4rt. So s is again 0 here, minus 4. Instead of r, you are having 1. Instead of t, also you are having 1. So you will get minus 4, which is less than 0. It means which kind of equation is this? Hyperbolic, elliptic, or parabolic? When you get some negative number, so you will have elliptic kind of equation. So this equation will be elliptic. Okay. Here it is. Now let me take some other example. Third one, R. Here it is. I'm taking this one. R plus S plus T minus 6, this one is equal to 0. So let me compare this with the standard form. So I will have R equal to 1, S equal to T, 2, and capital T equal to कितना? 1. ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो S square minus 4RT. I'll again find S square means 2 का square minus 4, R is 1, T is 1. So 2 square is 4 minus 4. You are getting 0. Whenever you will get exactly 0, S square minus 4RT. So what you will have, like what you will call this equation is represents which one? Parabola. Okay, so it is parabolic. What I'm writing, it's parabolic. So isn't it simple? These terms are very important, and ये बाद में भी आपका like use होते हैं. Parabolic equation. Okay, so I hope you all are clear with these all type of equations, the classification of partial differential equation, isn't it? So let's move to the next one. अभी यहाँ पे again मतलब अभी RST के टर्म में दिया है. Sometime you will be given like another example I am taking, and आपको यही question क्या रहेगा आपका? Classify the following a partial differential equation. वही question रहेगा. So you need to classify. It means you need to recognize which, like identify which kind of equation is this. अभी ये दिया हुआ है, इस फॉर्म में दिया हुआ है. This is not u, it is y. It is u, sorry, instead of y, and it is del y square, del by y square equal to 2. This is your equation. So it may be a little bit confusing if it is in terms of like du, del by u upon del x. Better you convert this into RST wala form. So this is nothing but r, small r, plus 4. x, y के दोनों के term होंगे तो this is t. तो ये क्या हो जाएगा? Sorry, s, and minus y वाले term को हम t बोलते हैं.
इक्वल टू 2, ये मैंने आर एस टी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एस एंड टी. आर इक्वल टू 2 है, एस इक्वल टू 4 है एंड टी इक्वल टू -3, isn't it? So I'll find again r square, sorry, s square minus 4rt. S is 4 का square minus 4, r is 2, t is -3. तो 4 4 are 16, minus minus plus 4 2 are 8, 3 are 24, I guess, है ना? So it will become 40. So basically this is positive number. If it is positive number, so this equation will imply hyperbola. So it will be of hyperbola. Understood? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. It is simple. मतलब अगर आप आसानी से कर, मतलब if you remember the conditions and you know how to compare the terms and how to get the value of capital RST, so it is quite simple to recognize or identify or classify the partial differential equation. Okay. So now fourth, fifth one. I'm giving you one question, so you will solve this. यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू डेल वाई डेल एक्स हो या डेल एक्स डेल वाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो दैट विल बी सेम. This is y square equal to 0. One is this, you just tell me the answer. And then other, yeah, other we will take something a little different. अभी तक हम सिर्फ नंबर ले रहे हैं, अभी हम वेरिएबल पूछ लेंगे, ये हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे. आप लोग मुझे फिफ्थ वाला बताओ करके. क्या आ रहा है? Equal to 0. So what it is like denoting which, Parabolic. yeah, it will be parabolic. Yeah, very good. I hope others also must have got the same answer, है ना? Yes, ma'am. Okay. So coming forward, moving forward, the sixth one I'm taking, it is parabolic because आपको 0 मिलता है, तो मैं सीधे आंसर ही लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कर ही लिया रहेगा वो, तो no need to waste time on this. So this is parabolic, okay, because you will get s square minus 4rt equal to 0. So the another equation, अभी तक हमने जो भी equations ली, those were having the coefficient as a constant terms, right? RST की value constant थी, but now I am taking an equation in which the value of RST, basically the RST are the functions of x and y. And constant तो हो ही सकते हैं, but basically they are the functions of x and y. So in this question, like in question number 6, I'm taking x, y, r minus x square minus y square small s and minus x, y and then t, फिर है py, एक सेकेंड ना, हाँ, py minus qx equal to 2x square minus y square. As I already told you that we just focus on the terms having small r, small s and small t. It means this one and this one. बाकी टर्म से हमें कुछ भी करना नहीं है because we only need capital R, capital S and capital T for the classification. Okay, so what is capital R here? XY. What is capital T here? Minus XY. And what is S here? Minus X square minus कितना हो जाएगा? Y square. Isn't it? So you got the values of x, y, t. तो now अभी हमें क्या करना है? S square minus 4rt का वैल्यू फाइंड करना है. So S square is minus x square minus y square का होल स्क्वायर, ये आएगा s square minus 4r की जगह है xy और t की जगह है minus xy. So this will be x square minus y square ka whole square. Should I open this directly? Okay, let me open this. Why to take one unnecessary?
extra steps. Okay, so minus का तो plus हो जाएगा. When I open this, I'll get x raised to 4 is a minus b का whole square minus 2ab plus b square, that is y raised to 4 minus c, minus इधर है, already एक minus अंदर है, तो this will become plus 4x square y square. Here it is. Is that clear or not? Yes, ma'am. Okay, so now oh, this is 2. Okay, I cannot cancel, but I can simplify this. It is x raised to 4 minus, देखो यहाँ पे minus और यहाँ पे plus 4 है, तो 4 में से 2 गया, plus 2x square y square plus y raised to 4. तो ये हो जाएगा x square plus y square का whole square. Is that clear? So what do you think? This value will be like which kind of value you will have? Irrespective of the what value you are having, it will define. क्या होगा ये? Ma'am, hyperbolic. Yeah, because you will always have a positive value for this. Why? Because you are having x and y. मतलब अभी x और y जीरो तो नहीं होगा. हाँ, या फिर आप एक कंडीशन लिख सकते हो, क्योंकि ना कभी कभी आपको नेट में ना ऐसे, जैसे सेट में नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आपको इक्वेशन दी रहेगी, तो इट विल बी हाइपरबोलिक इफ सो एंड सो, एंड इट विल बी हाइपरबोल अदर थिंग इफ सो एंड सो. लेट मी टेल यू, आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? देखो, दो टाइप की वैल्यूज अराइज होती हैं. सिंस इट इज स्क्वायर, समथिंग का स्क्वायर, तो वेदर द इनसाइड पार्ट दैट इज, वैसे भी अंदर मेरे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एनीथिंग, ये तो हमेशा भले ही एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हारी, unless it is not zero, मतलब कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, whether it is negative or positive, you will get positive because square है वहां पे, तो नेगेटिव का भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव होगा, तो you will always get it a positive number, मतलब it will be always greater than 0. minus 4rt equal to greater than 0. ठीक है, इसमें ये हमेशा आपको ग्रेटर देन 0 मिलेगा when x and y are नॉन जीरो, कोई नॉन जीरो वैल्यू होगी. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट इट विल बी 0. स्क्वायर माइनस 4rt आपको 0 कब मिलेगा? when x एंड y दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी. देन ओनली एक कंडीशन में आपको ये 0 मिलता है, जब भी x और y दोनों के दोनों 0 होंगे, अदरवाइज यू विल हैव नॉन जीरो. बट अगर ये दोनों 0 हो गए तो फिर ये पूरी इक्वेशन ही 0 हो जाएगी, है ना. हाउ टू एलिमिनेट? वी शुड हैव अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑफ आवर आंसर. तो अगर मैं यहाँ पे x और y को 0 ले रही हूँ, तो इट मीन्स जो मेरी गिवन इक्वेशन है ना, ये तो 0 ही हो गई फिर, मतलब ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0. सो दिस कंडीशन आई एम नॉट गोइंग टू टेक. ओके, तो ओनली वन कंडीशन आई एम लेफ्ट विद, दैट इज व्हाट, ग्रेटर देन 0. तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 0 ये सिर्फ x और y के 0 होने पे ही हो सकता है, तो 0 तो नहीं होगा. तो दिस विल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. इट मींस द गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक. समझा या नहीं? I hope you are clear with this. Yes, ma'am. Okay, so now let's have some other one. इसको करो, मैं देखते हैं, second मुझे, give me a moment. Let me check for the other one where it has gone. Are you done with this? Another question, seventh one. I'm giving you 2-3 minutes to simplify this. Later on, we will discuss the solution. xy minus 1. It will become a little tedious. You have to adjust the terms and find the answer. Y into it is x into xy minus 1 into r minus x square y square minus 1 into s plus y xy minus 1 into t plus xp plus yq equal to 0.
फर्स्ट फाइंड एक्स एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये आप फाइंड कर लोगे ना, एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो उसको आप कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, मतलब एंड दैट शुड बी, जैसे इस वाले में मिली थी स्क्वायर, तो वी कैन डायरेक्टली से दैट वी विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, राइट? ऐसी कुछ वैल्यू आपको मिलनी चाहिए जिससे आप क्लेम कर सको कि वो पॉजिटिव ही होगी या नेगेटिव ही होगी, लाइक दैट। जस्ट गो थ्रू दिस, डू इट, यू आर हैविंग 3 minutes. Someone has got the answer? No one. Quick, guys. You have limited time. Actually, I'm waiting for your reply. Then only I'll start. तो मतलब अभी तक किसी का हुआ नहीं है? ओके, मैं भी शुरू कर रही हूँ. वी कांट टेक वेरी मच टाइम फॉर दिस वन. पहले तो मुझे RST की वैल्यू देखनी पड़ेगी, यहाँ पे क्या क्या है ना? दैट इज माय बेसिक थिंग. दिस इज द फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू. दैट इज R है आपका x y माइनस 1, S है माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर minus 1, and the T is y xy minus 1. Okay, so what I can do is r square, like r square minus r क्या है मेरे पास, s square minus 4RT. ओके फाइन. देखो, अगर हमारे पास कांस्टेंट होता ना, तो इट बिकम क्वाइट सिंपल टू लाइक क्लासिफाई, बिकॉज वो एक नंबर आता है एंड वी कैन क्लेम, अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला, नेगेटिव है तो पैराबोला, अदरवाइज सॉरी नेगेटिव है तो इलिप्स, अदरवाइज पैराबोला, अगर जीरो आता है तो हमारे पास कांस्टेंट वाले टर्म में कभी भी तकलीफ नहीं होती है. प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वी आर हैविंग सम वेरिएबल्स, सो दैट टाइम वी नीड टू, unless or until we are not reaching to certain condition, we can't say that that is positive or negative without a solid proof. तो s square minus 4RT, मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ ना? हाँ, s square minus 4RT, s means what, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब माइनस का तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, आई एम राइटिंग माइनस 4, r की जगह पे क्या है x, xy माइनस 1, एंड t की जगह पे है y xy minus 1, isn't it? So
इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, फॉर नाउ इसको ऐसे रहने दो 4। ये देखो अगर मैं इसको ओपन कर रही हूँ ना, सो व्हाट आई विल हैव, I will have 4xy minus 1 का होल स्क्वायर, isn't it so? है ना, ये आएगा मेरे को। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो सकता है, अगर इसको ओपन करोगे तो ना वो और लेंदी हो जाएगा, तो बेटर व्हाट आई एम डूइंग इज, मेरे पास इसके अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1, कैन आई ओपन दिस यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो व्हाट इट विल बिकम xy minus 1 square and xy plus 1 square. Is that clear, everybody? This first term I have factorized into two different terms. So मतलब x square minus y square x square y square minus 1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा xy minus 1 and xy plus 1, and बाहर square है तो दोनों में square आ जाएगा. Is that clear? And minus 4xy minus 1 का square. तो ये दो टर्म में से अगर मैं एक्स वाई माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अंदर मेरे पास बचेगा एक्स वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4xy, दैट्स इट, इतना ही बचेगा मेरे पास, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, एक्स वाई माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा है ना, अनलेस कि ये एक्स वाई की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 ना हो। और अगर मैं इसको ओपन करूंगी तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 1 माइनस 4xy, दिस आई हैव गॉट। सो एक्स वाई माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, तो इट विल गिव मी माइनस 2xy, isn't it? So it will give me minus 2xy plus 1. So what I will have xy minus 1 square and ये हो जाएगा xy minus 1 square. Okay, तो it is xy, हाँ ये भी xy minus 1 square हो गया. So altogether you are having xy minus 1 raised to 4. तो definitely it will be greater than 0, क्योंकि स्क्वायर होता है तो greater than 0 है. Obviously xy 1 के बराबर नहीं होना चाहिए. So that's it. तो ये greater than 0 तो मतलब hyperbola. Clear everyone? So somehow we need to manage the terms and adjust the terms and come to some certain conclusion which can using which we can claim that it will be either positive or negative. देखो कभी कभी पता है क्या होता है, यहाँ पे आपको नेगेटिव आता है, मतलब समवेयर ऊपर से आप कॉमन ले रहे होते एंड यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलता, तो आपको ये पूरा टर्म पॉजिटिव मिलने वाला है और बाहर से माइनस होगा तो पूरा टर्म तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में आपका क्या होता था, इलिप्स होता था, इलिप्टिक या फिर, ठीक है। कभी ऐसे भी टर्म्स मिलते हैं जहाँ पे बाहर से आपको नेगेटिव मिलता है, तो स्क्वायर के बाहर या फिर पावर 4 के बाहर आपको माइनस मिल रहा है, तो इट मींस दैट होल टर्म विल बी कन्वर्टेड इनटू सम नेगेटिव नंबर। तो फिर उसमें क्या होगा, आपको नेगेटिव में ही आंसर मिलेगा, नो मैटर आपको स्क्वायर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो माइनस कर देगा ना उसको नेगेटिव बना देगा। तो दैट्स व्हाई। क्लियर है फिर सभी का ये वाला टर्म? यस मैम। ओके गुड। सो नाउ देखो अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, दीज वर फॉर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एंड अदर्स जैसे कि यू है, बाकी अदर वेरिएबल वाज डिपेंडिंग ऑन एक्स एंड वाई। ओके, व्हाट इफ देयर आर थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जी, या फिर x1 x2 and x3 like that, so there is also a classification having the like three independent variables. So let me get the picture of that because I'm sure somewhere I'm having this. Can you see the picture over here? I have clipped from some book. उतना कौन करते रहेगा, तो let me tell you कैसे करना है। Clear ना? तो ये क्या है, देखो classification of a partial differential equation in three independent variables. So now we are talking about three independent variables. ठीक है, so हम लोगों ने जो तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए वो लिए x1 x2 एंड x3, और ये इसका फॉर्म है। इट मींस कैसे है, इसमें आपके एक बार
x के साथ होगा, एक बार y x2 के साथ, फिर x3 के साथ, फिर x1 x2 का कॉम्बिनेशन, फिर x2 x3 का कॉम्बिनेशन, दैट वे इट कीप ऑन गोइंग। ठीक है, सो इसमें हम करना क्या है, we have to like write everything in terms of a matrix, because अभी 3 वेरिएबल हैं, तो आपके जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, uxx बनेगा, uxy uxz, फिर uyz yx yy yz, फिर zx zy and zz, मतलब 3 मतलब उस पर डिपेंडेंट है वो 3। एक्चुअली ऊपर उसने लिया है x1 x2 x3 और नीचे उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं xyz मतलब। तो इट इज अप टू यू कौन से लेने हैं, या फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा, कौन से 3 वेरिएबल लेके आता है। तो हमें ना क्या करना होता है, कोई भी मतलब A है, दैट इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। व्हाई दिस इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि आप UXZ लिखो या फिर UZX लिखो, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, it is calling it symmetric matrix. The eigenvalues of matrix A are roots of the characteristic equation of A, namely आपको पता है कि आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 करके। सो तो लैम्डा की जो भी वैल्यूज होंगी दोज विल गिव यू द आइगन वैल्यूज। सो क्या होता है, वहां से हमें पता चलता है, नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द आइगन वैल्यूज, देन वी विल हैव whether we will classify whether the given equation is hyperbolic and second thing is parabolic या फिर क्या होगा, एलिप्टिक। तो कैसे होता है, कंडीशन आप लोग लिख लो। फर्स्ट आप क्या लिखोगे, लेट ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, बिकॉज वी आर सेइंग कि हम लोग 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ले रहे हैं। सो राइट डाउन ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मेन ओनली लिखो, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। एंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ, ठीक है। Roots of characteristic equation of A. So matrix A is classified as follows. मतलब how, when you will say that A, the given matrix, the given equation is representing hyperbola या फिर parabola या फिर ellipse, ठीक है। तो 3 कंडीशन आपको गिवन होंगी। पहली कंडीशन लिखिए, the first condition is, अगर आपको A की जो आइगन वैल्यूज हैं नॉन जीरो हैं एंड हैव द सेम साइन एक्सेप्ट प्रिसाइसली वन ऑफ देम, राइट डाउन इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ A आर नॉन जीरो, पहली बात तो सारी की सारी नॉन जीरो होनी चाहिए, एंड हैव द सेम साइन, क्योंकि हम लोग 3 by 3 की मैट्रिक्स लेते तो वी विल हैव 3 आइगन वैल्यूज, तो उसमें से 2 सेम होने चाहिए और एक का साइन अलग हो सकता है, ठीक है। सो क्या लिखा आपने, are non-zero and have same sign except precisely one of them, then one is known as, one means this equation, you can write this one as well at the top, but anyway क्योंकि ये उसने क्या लिखा है, सारे समेशन के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि 3 वेरिएबल होंगे तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट्स व्हाई हियर इट हैज रिटन लाइक दिस। सो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो दैट इक्वेशन विल बी कॉल्ड हाइपरबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। उसके बाद है सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, डिटर्मिनेंट अगर ए का 0 आया, आपको पता होगा अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का 0 होता है तो एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू उसकी 0 होती है, यू मस्ट बी नोइंग दिस फैक्ट, है ना। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा तो क्या होगा, एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो लिखो सेकेंड कंडीशन, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 दैट इज एनी वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए 0, देन हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पैराबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, जो भी मुझे इक्वेशन गिवन रहेगी, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड पैराबोलिक टाइप ऑफ इक्वेशन। एंड थर्ड में क्या कंडीशन है, द थर्ड कंडीशन इज सेइंग दैट if all eigenvalue of A are non-zero and of same sign,
नॉन जीरो है, लेकिन यहाँ पे तीनों का साइन सेम है। हाइपरबोलिक में क्या होता है कि दो का साइन सेम एंड प्रिसाइसली द थर्ड वन इज ऑफ डिफरेंट साइन, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तीनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। Then what I will say that it is a elliptical type of equation. So उस a को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ u x x, इसको आप लिखो, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दैट यू कैन राइट। तो आपको जो इक्वेशन गिवन रहेगा, दिस वे ओनली यू विल क्लासिफाई दोज इक्वेशंस लाइक दोज टर्म्स, एंड उससे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, देन यू विल गो अहेड। अभी तक आप लोग बोल रहे थे, मतलब अभी तक जो u था दैट वाज इन टू में x एंड y पे डिपेंड करता था, बट नाउ दिस u डिपेंड्स ऑन x y एंड z, तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो लेट्स हैव इक्वेशन, लाइक क्वेश्चन की कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे मिलेंगे। एग्जांपल मैं एक ले रही हूँ, क्लासिफाई द पीडी uxx प्लस uyy इक्वल टू uzz, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन गिवन टू यू। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या लिखोगे, uxx प्लस uyy माइनस uzz इक्वल टू 0, मतलब क्या करोगे, सब एक साइड लेके आओगे, तो दैट इज योर f। ओके, नाउ हाउ टू राइट द वैल्यू ऑफ a आपकी जो मैट्रिक्स है वो कैसे मिलती है, कोएफिशिएंट ऑफ u x y क्या है, यहाँ पे कुछ मिला है क्या, सॉरी पहले क्या होता है कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u x x कितना है, u x x का कोएफिशिएंट 1, एक्स वाई कोई टर्म ही नहीं है तो 0, एक्स जेड भी कोई टर्म नहीं है, फिर यू वाई एक्स भी कोई टर्म नहीं है, वाई वाई का कोएफिशिएंट कितना है 1, एंड वाई जेड का कोएफिशिएंट कितना है 0, अगेन 0, एंड दिस ऑल्सो जेड वाई का भी 0 है, क्योंकि जेड वाई का भी कोई टर्म नहीं है। नाउ जेड जेड का टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट आपके पास कितना है -1। Now can you tell me what are the eigenvalues of this matrix A? Quickly, you must have studied the theorem of kind of this. अगर हमारे पास कोई diagonal matrix होती है, so the eigenvalues are on diagonal of that matrix. वो diagonal element ही उसके क्या होते हैं, the eigenvalues होते हैं। ये पढ़ा कभी, पढ़ा होगा लीनियर में, है ना, आई गेस पढ़ा होगा ना, एमएससी में हो ना आप लोग, तो पढ़ लिया रहेगा अभी तक, ग्रेजुएशन में यस मैम पढ़ा है ना, हाँ। तो फिर Yes, ma'am. सो क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो उसके आइगन वैल्यूज उसके डायगोनल पे लाई करते हैं, तो इट मींस वी कैन प्रिसाइसली से दैट द डायगोनल एंट्रीज आर इट्स आइगन वैल्यूज। सो आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू 1 1 एंड -1। नाउ अब ये कौन से उसको मैच कर रहा है हमें देखना पड़ेगा। देखो पहले वाले में क्या है, इफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर नॉन जीरो, हाँ ये नॉन जीरो है तीनों के तीनों, एंड have same sign except precisely one of them, मतलब किसी एक को छोड़ के सारे के साइन सेम है, तो यस सिर्फ -1 है, बाकी दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो इट मींस इट इज representing which type of equation, hyperbolic, isn't it so? Yes or no? Clear ना everyone how it is denoting hyperbolic? बट ये मेरा सब टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई, एक्चुअली मैं टेढ़ा बैठी हूँ, एक सेकेंड ना, this is representing
hyperbolic equation. This equation is representing hyperbolic equation. Understood? तो काफी सिंपल होता है. इसमें क्या होता है ना, आप लोगों को इक्वेशन थोड़े इजी देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत टीडियस इक्वेशन देंगे. तो यू कैन इजीली डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शंस ऑफ दैट. अगर मैं आपको इसका डिटरमिनेंट निकालने को बोलूं तो व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स? क्विक. इतना टाइम नहीं लगता है डिटरमिनेंट निकालने में, स्पेशली इस मैट्रिक्स का. वैसे टाइम लगता है, बट इसका आप देख के ही बता दो तो डिटरमिनेंट कितना होगा. जल्दी बताओ. -1. यस. व्हाई? डिटरमिनेंट होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, इजंट इट? अगर आपके पास कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो उसका डिटरमिनेंट है, मतलब उसके आइगन वैल्यूज के इस पे लाई करेंगे डेटा इस पे. तो ट्रेस इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ द आइगन वैल्यूज एंड डिटरमिनेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज. या ये भी आपने पढ़ा होगा, है ना? चलो ठीक है, पढ़ा है. लीनियर में लगता है पढ़ाई नहीं करो तुम लोग. लीनियर में, लीनियर है तुम्हें इस बार या फिर फर्स्ट सेम में था? Okay, nobody is interested in replying the other answers. Anyway, fine. So other question I'm taking now. You people will do this. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है. uxx plus uyy plus uzz whatever you say. Then यहाँ पे दे दिया zy and यहाँ पे दे दिया है uyz equal to 0. Now फर्स्ट राइट, ये तो सारे के टर्म्स एलएचएस में ही हैं, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. 3/3 का आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका वैल्यू बताओ क्या आएगा. एक्स एक्स की जगह पे 1 आएगा, एक्स वाई नहीं है, एक्स जेड नहीं है, तो मतलब सिमेट्रिक होता है. देखो ये भी ना, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो यू कैन से दैट द ए इज, यू कैन सी दैट ए इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओवर हियर. और कभी भी आप फाइंड करोगे और रियल सिमेट्रिक ही आता है. अभी एक्स वाई तो 0 है, सॉरी वाई एक्स 0 है, वाई वाई 1 है, वाई जेड, देखो वाई जेड भी यहाँ पे दिया हुआ है इसमें, तो ये भी 1 है. उसके बाद है जेड एक्स 0 है, जेड वाई 1 है एंड जेड जेड भी 1 है. सो इसमें तो ऐसे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये कोई हम लोग की ना अपर ट्रायंगुलर आ रही है ना लोअर ट्रायंगुलर आ रही है ना डायगोनल है, तो मतलब इसमें हमें चेक करना पड़ेगा. तो सबसे पहला मेरा स्टेप रहेगा टू फाइंड द डिटरमिनेंट. अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो फिर मैं आगे कर सकती हूँ. अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो आई कैन डायरेक्टली से दैट इट इज अ पैराबोला. तो लेट्स सी डिटरमिनेंट क्या आएगा. 1 into 1, हाँ आ गया ना 0, तो ये -0 हो जाएगा एंड +0, तो यहाँ पे भी 0 ही आ गया है. डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज क्या, 0. तो अगर एक आइगन वैल्यू 0 है तो मतलब वो क्या है, पैराबोला है. तो दिस implies given equation represent a parabola. Clear? तो आपको ये आइडेंटिफाई करने को आता है पैराबोला वगैरह. जब सेकंड यूनिट का टेस्ट होगा तो डेफिनेटली यू विल हैव 1-2 क्वेश्चन ऑफ फॉर आइडेंटिफाइंग द पैराबोला और हाइपरबोला, सम काइंड ऑफ थिंग्स. So are you done with this? Another question I'm taking. ये तो आप ऐसे, ये सेम ही है, आप देख के बता दोगे. uxx uyy uzz इक्वल टू 0, क्या है ये, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ देख के नहीं बताओगे, एक्चुअली आप सॉल्व करना पड़ेगा. तो पहले तो यहाँ से a फाइंड करो. व्हाट इज a ओवर हियर? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो द आइगन वैल्यूज क्या है फिर a की? अगेन इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो आइगन वैल्यूज ऑफ a आर नथिंग बट द डायगोनल एलिमेंट.
1 1 1 तीनों सेम है। जब तीनों आइगन वैल्यू सेम होते हैं, सेम साइज के, सेम साइन के, मतलब द साइन इज पॉजिटिव ऑफ ऑल द थ्री, तो क्या होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? elliptic मैम. इट रिप्रेजेंट रिलेट। ओके, अगर दो में से, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, इन दैट it were having two 1 1 and the last one is -1, that's why one was precisely different from the other two, so that's why we call it a hyperbolic, but here all the three has same sign, so this means क्या हो जाएगा? elliptic, ये हो जाएगा elliptic. Okay, so I hope it is clear. Let me take one last example from this topic. uxx plus 2uyy plus uzz equal to 2uxy plus 2uyz. इसको आप लोग सॉल्व करो एंड बताओ क्या है। हाँ, इसमें आपको देखना पड़ेगा सॉल्व करके। सबसे पहले अगर आपका सीधे डायगोनल एलिमेंट नहीं मिल रहा है ना, तो बेटर व्हाट यू डू, यू जस्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट। अगर नॉन जीरो आएगा तो फिर आगे को देखोगे, अदरवाइज अगर जीरो आए तो फिर अच्छा है कि आपको पैराबोला हो जाएगा सीधे। अदरवाइज फिर 3/3 की आइगन वैल्यू निकालनी, मतलब आपको उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। इट विल बी मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के दैट तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट मतलब टाइम कंज्यूमिंग होता है, डिफिकल्ट तो क्या है, ठीक है, मतलब आप लोग आइगन वैल्यू ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, so that is not difficult, rather it will be a little time consuming, so better first find a. So what do you have got? नहीं आया क्या? Determinant is 1 ma'am. I'm not sure. It is 1. Okay, let me check. Others also got the same answer. Okay, let me check this. A equal to, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं ना, 2 आ रहा है, लगता है सबका अलग अलग आ रहा है, ठीक है, मुझे भी एक बार करने दो देखते हैं क्या आता है। So this is, see what it is, uxx plus 2uyy plus uzz minus 2uxy. Yes ma'am, it's 2. I make a mistake. Okay, let's see. Minus 2uyz equal to 0, ये आया है ना? तो यहाँ पे कोई सेम वाले टर्म्स तो नहीं है ना? We all are having different terms, uxx plus 2uyy. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आपको एक ही टर्म दिया हुआ है, देखो ऊपर वाले में क्या दिया था, इस वाले में आपको दिया था zy एंड यहाँ पे आपको दिया था yz, देन इट वाज ओके। बट इफ यू आर गिवन ओनली वन टर्म, दैट इज व्हाट यू आर गिवन xy, but another term is yz, so what you will do, you will break it into two parts. ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमें इवेंचुअली, अभी आप जरा अपनी मैट्रिक्स को देखो और मुझे बताओ कि आपने क्या वो सिमेट्रिक है, पहली बात तो, क्योंकि हमें क्या था, हमारे पास कंडीशन क्या है, A should be symmetric. Now you check your matrix and tell me whether you have got A as a symmetric or not. First of all, it should not be, it must be
नॉन सिमेट्रिक, डेफिनेटली Not symmetric. है ना, नॉन सिमेट्रिक है ना, सो इट मींस इट इज रॉन्ग बिकॉज हम लोगों को जो मैट्रिक्स है उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। अब वो कैसे फुलफिल होती है, जैसे हम लोग को ये दिया हुआ है ना u(x)। अच्छा, तो तुम लोगों ने पहले शायद डायगोनलाइजेशन वगैरह पता नहीं किया रहेगा कि नहीं, किया तो रहेगा, बट एनीवे ठीक है, देखते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन। हाँ, तो ये है 2u(y)y प्लस u(z)z प्लस, देखो अगर ये xy है, यहाँ पे yx होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे क्या है 2uxy है, तो व्हाट आई कैन राइट दिस एज uxy minus uyx, ये लिख देंगे, as I already told you that xy and y both are same, so I have split that 2uxy into two terms. Are you getting me? To make my matrix symmetric. Is that clear or not? Or similarly I will do the same with the last term as well. तो ये हो जाएगा uyz minus uzy। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, yz एंड zy दोनों सेम ही होते हैं, और ये दोनों सेम है तो ये मुझे क्या देंगे, दोनों ऑपरेट मतलब ऐड होके -2uyz दे देंगे। बट फॉर नाउ सिंस आई वांट माय मैट्रिक्स A, दैट्स व्हाई आई एम स्प्लिटिंग द टर्म्स। नाउ सी व्हाट विल बी माय A क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ uxx, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1, xy का कोएफिशिएंट -1, xy xz तो नहीं है तो मतलब 0। दूसरा आएगा yx है ये -1, yy है 2, और yz भी हमारे पास है, देखो yz भी हमारे पास है, दैट इज -1। then zx का कोई भी वैल्यू नहीं है तो that will become 0। zy, see here is the term zy, तो again -1, and zz, that is 1। so this is my A matrix, and you can see that it is clearly symmetric matrix, isn't it? Yes or no? So you understood how to split the terms? Yes, ma'am. तो यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा था, ये देखो A is a real symmetric matrix, A should be a real symmetric matrix, okay? तो then only we can apply आगे की जो conditions हैं उनको। तो पहली कंडीशन वो अगर फुलफिल नहीं करेगी तो आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, नाउ सिंस ये ऐसे तो नहीं दिख रही है मुझे कुछ अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर टाइप, तो मैं डायगोनल बेटर कि मैं मॉड ऑफ A फाइंड कर दूं, दैट इज डिटरमिनेंट। तो उससे देखती हूँ 2 1s are 2 -1 minus plus -1 -0 and plus 0, so it will give me 1 -1, तो it is 0। nice, तो 0 मिल गया तो मतलब आगे प्रॉब्लम नहीं है, 0 आ गया तो मतलब ये पैराबोलिक हो गया सिंपल। अगर व्हाट इफ ये 0 नहीं आता, फिर मेरे को क्या करना पड़ता, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना पड़ता एंड देन उसकी फैक्टर करने होते, फिर उससे मुझे क्या मिलेंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, 3/3 है तो मुझे क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी। सो इन दैट केस आई विल हैव 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज, तो उसको मेरे को देखना पड़ेगा फिर क्या उसमें 0 तो नहीं होगा क्योंकि नॉन जीरो है, तो मतलब अगर तीनों के तीनों सेम साइन के आएंगे तो मैं उसको इलिप्टिक बोलूंगी, अदरवाइज दो सेम और एक डिफरेंट आएगा तो मैं उसको पैराबोलिक सॉरी हाइपरबोला बोलूंगी। बट ये यहीं पे 0 आ गया तो यहीं पे कहानी खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? यस ना? सो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, क्लासिफिकेशन वी आर डन विद। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं इसकी, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दैट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो लेट मी, किसका पीडीएफ बोल रहे हो आप? युग? हाँ, पीडीएफ तो मैं रोज ही भेज रही हूँ ना उसमें, मतलब वो MS टीम्स में, सॉरी वर्ड में, इसको कॉपी करके।
वो गाइस वो ये है क्या विजिबल है वो प्रॉपर, मतलब क्योंकि ना ऊपर नीचे से जा रहा था, उसके जो ब्रेक ब्रेक करके दे रहा था ना उसमें वो, तो विजिबल है वो। आपने देखा ना, हैव यू गॉन थ्रू दैट वर्ल्ड फाइल आई हैव अपलोडेड ऑफ द लेक्चर वाइज? किसी ने देखा क्या? बस टाइम पास के लिए बोलते हो भेज दो और देखते तो हो नहीं, किसी ने भी नहीं देखा अभी तक का रिकॉर्डिंग। एंड ये जो लेक्चर्स का मैं ये भेजती हूँ आप लोगों को, ऑलरेडी देयर इन द गूगल ड्राइव। वो गूगल ड्राइव में है, जिसका लिंक मैंने आपको सेंड किया था। एक्चुअली वो मेरे को लास्ट ईयर का मैंने सर को बोला है, तो इट इज ऑन प्रोसेस। तो मेरे को एक बार इक्लिप्स का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा तो मैं वहां पे भी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। Okay. बाकी मैंने फॉर नाउ मैंने गूगल ड्राइव में अपलोड किया है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया था, तो आप वहां पे जाके एक्सेस कर सकते हो सारे वीडियोस और लेक्चर्स नोट्स, वहां पे है सारा चीज। वीडियो चल नहीं रहा था मैं क्या था? वीडियो चल नहीं रहा था उसका। अच्छा वीडियो नहीं चल रहा था? नहीं चलना चाहिए, मतलब मैंने ट्राई करके देखा, मे बी आई थिंक कोई तो मुझे बोला था कि वो डाउनलोड करना पड़ रहा है करके, सम ऑफ द स्टूडेंट वाज सेइंग। आई डोंट नो, मतलब मैं तो नॉर्मली एक्सेस कर पा रही थी, बट वो शायद मैंने ही डाउनलोड किया, तो मे बी मेरी साइड से कोई वो नहीं हो रहा होगा। बट एक बार आप ट्राई करो, नहीं तो एक दो दिन ना, मतलब मैक्स टू मैक्स दिस वीक आई विल गेट द यूजर आईडी पासवर्ड, बिकॉज वो लास्ट ईयर का मैं भूल गई, तो इक्लिप्स का ओके तो मैम। अदरवाइज यू विल हैव वहां पे। चलो वीडियोस का आई डोंट नो अगर कोई इशू है या नहीं है, बट नोट्स तो आपको मिल जाएंगे वहां पे, ठीक है। ओके। ओके, लेक्चर वाइज मैंने डाला हुआ है 1.1, मतलब पहले लेक्चर का पहला यूनिट का पहला नोट, तो वो प्रॉपरली है अरेंज, तो यू विल हैव दैट। ओके, सो नाउ द अदर थिंग इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और लेंगे किसका इक्वेशन, तो हमारे पास वही होगी सेकेंड ऑर्डर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, और लास्ट वाला क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई यू पी क्यू, बाकी सबके सब इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, और दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1 सपोज। तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर कर रही हूँ। तो corresponding to 1, consider lambda quadratic equation. lambda quadratic equation का मतलब है आर एस टी तो मेरे सेम रहेंगे, आर में ऐसे लिखूंगी आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी, मतलब ये है लैम्डा के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें वो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी है, जहां पे मेरा एबीसी आर एस टी के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0। आई एम कंसिडरिंग दिस इज अ, मतलब एक लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले रही हूँ, जिसके कोएफिशिएंट्स क्या हैं, आर एस एंड टी हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, अगर इस केस में अगर मुझे अगेन आई विल टेक ऑल द 3 टाइप ऑफ थिंग्स। सबसे पहला क्या होगा, इफ मेरे को एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये अगर मेरे को ग्रेटर देन 0 आते हैं, सो आई विल कॉल एंड आई विल से इक्वेशन 2 हैज रियल रूट्स। तो मैं क्या बोलूंगी, इक्वेशन 2 के क्या है, रियल रूट्स है। सो अभी पिछली बार जो हमने इसका क्लासिफिकेशन में इसका इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, दैट वाज इट वाज रिप्रेजेंटिंग हाइपरबोला, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट रूट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरा एस स्क्वायर माइनस 4RT आता है, तो मैं बोलूंगी द इक्वेशन 2 मींस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज हैविंग रियल रूट्स, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी फिर इसकी, सी एच इक्वेशन अगर मैं लिख रही हूँ तो इट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। थोड़ा सा शॉर्टकट है, तो अभी तक तो आपको समझ आ गया रहेगा बार बार, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम डे 1 से सुनते आ रहे हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इट विल बी गिवन बाय dy बाय dx प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो जो भी आपको रहेगा दैट विल बी 0, ठीक है। यह आ गया इक्वेशन नंबर 3। दिस विल गिव यू द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इफ s square minus 4RT is greater than 0, and equation 2 in that case will represent
रियल रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अराइज होता है केस 1। सो केस 1 में क्या है, इफ फर्दर आई विल लाइक कैटेगराइज दिस। अभी ये देखो, रियल रूट तो बोल दिया मैंने, बट वो रियल सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं ना, तो वही बात करेंगे। अगर हमारा s स्क्वायर माइनस 4rt क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो डेफिनेटली ये क्या होता है, हाइपरबोला है ना, हाइपरबोला होता है। और अगर ऐसा आता है तो इक्वेशन 2 हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके गाइज, एक मिनट है यहाँ पे ना, यहाँ पे जरा ये देखो, फोकस हियर इन दिस इक्वेशन एक्चुअली इट वाज गिवन ग्रेटर देन इक्वल टू। रियल रूट कभी आते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 भी होगा, इट विल कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू एज वेल। फर्दर मैं इसको फिर डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं दोनों लूंगी, ग्रेटर देन भी लूंगी, इक्वल टू भी लूंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब आई विल हैव रियल रूट, और अगर लेस देन 0 आ रहा है तो आई विल हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। क्योंकि क्यों होता है ऐसा, आपने ये पढ़ा होगा ना, रूट्स कैसे निकालते हैं हम। अगर x का मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो पाता तो हम ऐसे लिखते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है ना। अब ये अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे जो मेरा है वो है x की जगह लैम्डा है, और माइनस b की जगह मेरे पास s है, प्लस माइनस s स्क्वायर माइनस 4rt अपॉन 2r, ये है मेरा अभी का जो है। ठीक है, लैम्डा मतलब इंस्टेड ऑफ दिस जो इक्वेशन नंबर 2 का रूट्स आएंगे मुझे ऐसे मिलेंगे। तो अगर मेरा s स्क्वायर माइनस 4rt ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 आता है तो मुझे रियल नंबर मिलेगा, कुछ भी होने दो लेकिन मुझे रियल मिलेगा, ग्रेटर देन में भी और 0 में भी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, दोनों के दोनों कंडीशन लिए, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैं बाद में और उसको कैटेगराइज करूंगी, अगर ग्रेटर देन 0 होगा और सेकंड वाला अगर इक्वल टू 0 होगा तो कैसे रूट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर ये वैल्यू लेस देन 0 होती है, अंडर रूट के अंदर अगर मुझे नेगेटिव नंबर मिलता है तो मैं मेरे जो रूट्स हैं वो कहाँ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। क्योंकि रूट ऑफ सपोज मुझे मिला -4, तो ये क्या आ जाएगा 2i, यही आएगा ना। तो मेरा मतलब किस में जाएगा, वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो इसके लिए हम s स्क्वायर माइनस 4rt पे बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में मैंने क्या लिया, I have taken greater than equal to 0. Okay, I hope you are clear with this. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मतलब क्या हो जाएगा, हाइपरबोला। सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रियल रूट्स। अब उसको भी दो बार में फिर कैटेगराइज करूंगी, अगर एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 है एंड दूसरे में इक्वल टू 0 है। ठीक है, यू समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब मैं व्हाट आई वांट टू से। Yes, ma'am. ओके, सो मैं इसको रब कर रही हूँ, ये मतलब सिर्फ समझाने के लिए था क्यों है, बाकी ठीक है। सो अगर अभी इसमें से मैं एक कंडीशन लूंगी ग्रेटर देन 0 की, तो हाइपरबोला होता है वो तो हमें पता है। तो इट मींस जो इक्वेशन 2 है इट हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो उसके क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका। और ये आपको क्वेश्चन में भी आता है कि अगर आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछेंगे कि इट हैज रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स या फिर सेम रूट्स लाइक दैट, तो आपको इससे पता चलेगा। अभी इसका केस 2 क्या आएगा, हाँ एक सेकेंड ना, पहले डिस्टिंक्ट रूट, अभी कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं करी हमने। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, dy, अभी डिस्टिंक्ट रूट होंगे तो क्या होगा, dy बाई dx प्लस लैम्डा 1, और ये लैम्डा एक्चुअली एक्स वाई पे बिलोंग करता है, इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आएगी। डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे तो डिस्टिंक्ट इक्वेशन भी आएगी, एंड dy बाई dx प्लस लैम्डा 2 x कॉमा y इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आएंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आएंगे। ओके, so this will give you two characteristic equations. तो हाइपरबोला के केस में दो डिस्टिंक्ट रूट्स एज वेल एज टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ केस 2, केस 2 में है इफ
एस स्क्वायर माइनस 4RT इज लेस देन, सॉरी, इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिया था तो ग्रेटर देन तो हो गया, इक्वल टू 0। अभी आपको इक्वल टू 0 में तो पता है क्या होता है, पैराबोला होता है ना। तो मतलब इक्वेशन जो 2 है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, और उसमें क्या होंगे, दिस वुड इम्प्लाइज इक्वेशन 2 हैज दो रूट्स तो होंगे, लेकिन वो दोनों क्या होंगे, सेम रूट्स होंगे। तो 2 इक्वल रूट्स, ऊपर में क्या था, डिस्टिंक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल रूट्स। रियल तो होंगे बट क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स, आई मस्ट से इक्वल रियल रूट्स, ये है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, और वो रूट्स क्या होंगे फिर गाइस, अगर लैम्डा सेम है तो मेरे को क्या होगा, dy बाय dx प्लस लैम्डा जो कि एक्स वाई पे बिलोंग कर, मतलब एक्स वाई पे डिपेंड करता है, तो दिस इज इक्वल टू 0, एक ही आएगा मतलब, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो यू विल हैव वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ ये हमारा केस था इस वन वाले का। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड वन, सेकंड वन में क्या मैं बोलूंगी, ये फर्स्ट के दो केसेस थे, नाउ द सेकंड कंडीशन इज एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर लेस देन 0 हुई तो क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा, इलिप्स है ना, इलिप्स होगा। तो इलिप्स में क्या होगा, रियल रूट कोई भी नहीं होगा, तो नो रियल रूट, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में होता है ना, मैंने आपको समझाया था अभी, रूट के अंदर आएगा, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर आएगा तो यू विल हैव रूट्स इन कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या होगा, नो रियल रूट, बट क्या होंगे, जो दोनों के दोनों होंगे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आती है, क्योंकि रियल रूट ही नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं आएगी। तो आप लोग क्या लिखोगे, नो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इज दैट क्लियर। सो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, तो फिर आप कोई भी गिवन आपको वैल्यू आप आसानी से कर सकते, है कि नहीं है। क्विकली फाइंड दिस आउट, like note this down, then we will have some examples. और कुछ समझा नहीं तो you can ask right now. हो गया सभी का? Shall we start the questions? Okay, एक सेकेंड, हाँ। Today is 28, right? चलो, ओ ये C++ कहाँ से खुल गया? सो नाउ एस स्क्वायर माइनस 4RT ये हो गया है। अभी मैं इस पे एक एग्जांपल लेती हूँ, तो फिर उस पे एनालिसिस करेंगे हम लोग, क्या इक्वेशन मिल रही है, क्या रूट्स मिल रहे हैं, दिस एंड दैट, ओके। So let's have equation number 1, sorry, example number 1. Find characteristics of, लिखिए, characteristics of y square r minus x square t equal to 0. इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले वही आर एस टी को देखना पड़ेगा कौन क्या है,
है ना, then only we will proceed to the next step. So what is r over here? कैपिटल r क्या है? y स्क्वायर है ना, कैपिटल r is y स्क्वायर, और कैपिटल s is 0 because no term of small s is given. Capital T is minus x square. Is that clear? सो ना वही आर स्क्वायर, मतलब हाँ सॉरी, अभी हमें क्या करना है कैरेक्टरिस्टिक के लिए, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आर लैम्डा स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया, एंड टी स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन y square. So this would imply lambda equal to plus minus x upon y. Is that clear? Actually ना यहाँ पे आप पहले ये पता कर सकते थे कि आपको कितने रूट्स मिलेंगे, तो उसके लिए आपको आर स्क्वायर सॉरी एस स्क्वायर माइनस 4rt फाइंड करना होता है ना, 4rt। तो एस स्क्वायर कितना है, 0 माइनस वाई स्क्वायर सॉरी माइनस 4y स्क्वायर, एन टी की जगह पे है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि टी है एक्स स्क्वायर। तो आपको मिलेगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0 एनीवे, एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी होने दो, प्लस ही हो जाने वाला है, एंड ग्रेटर देन 0 मतलब हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट्स, है ना। तो एक्चुअली पहले मुझे वो बताना चाहिए था, बट ठीक है सीधी भी कर सकते हैं क्योंकि उसने सीधे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करी है। सो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, हाइपर बोला, and this imply two characteristic curves या फिर characteristic equations. Okay? उसके बाद है यहाँ पे टू कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो मिल गया ना हमें, लैम्डा इक्वल टू क्या मिल गया, एक तो x अपॉन वाई, एक माइनस एक्स अपॉन वाई। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू या फिर मेंशनड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट लैम्डा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एक्स पे और वाई पे। तो आया ना लैम्डा एक्स और वाई के टर्म्स में आ गया, है ना। सो नाउ what else is there, लैम्डा की वैल्यू मिलेगी तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कैसे होते हैं, व्हाट हाइपरबोला के केस में कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स कैसे थे, dy अपॉन dx, हियर इट इज सी, ये पहला है और ये दूसरा है, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो आप क्या करोगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलो या कर्व्स बोलो, dy बाय dx प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0, दूसरा आएगा dy बाय dx प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। वो xy लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली लैम्डा xy का ही टर्म है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 है आपका x अपॉन वाई इक्वल टू 0, एंड dy बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। समझा ना। तो अभी इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y dy प्लस x dx इक्वल टू 0 एंड y dy minus x dx equal to 0, है ना। तो when I will integrate this, what I'll have, अगर integrating, so integrate करूंगी तो मुझे मिलेगा y dy plus x dx equal to 0 and y dy minus x dx equal to 0। तो इंटीग्रेशन में मुझे क्या मिलेगा, देखो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c1 एंड दूसरा मुझे मिलेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c2। ये दो कर्व्स मुझे मिल गए। दिस इज माय फाइनल आंसर। दैट्स इट। क्लियर एवरीबॉडी? यस और नो? यस बेबी। ओके, तो दैट्स इट। फिर मतलब अपने हुआ, साथ में हुआ क्या, या यू आर सॉल्विंग?
Let's take one last question of today's session, then we will continue. ये तो फिर भी ठीक है. Third and fourth unit is totally like theory. That is so boring. तो be ready with that. तो इसके लिए जितना भी enjoy करना है first and second unit में कर लो, because इसमें maximum क्या है, हमारा solving part है. मतलब we are having some condition, we need to check this or that. But third and fourth unit is completely like theory. We need to prove and prove. Nothing else is there. Only theorems are there. So first second unit is quite interesting. मतलब क्योंकि उसमें कुछ terms हैं, we have to check the condition, this and that. तो वो interesting रहता है. तो मैं वही सोच रही थी, क्योंकि मतलब I know you people are doing, but अगर तुम इसमें ही बोर हो जाओगे या फिर नहीं समझ आएगा, तो अगला वाला तो पता नहीं क्या होगा फिर थर्ड एंड फोर्थ यूनिट में. तो इसके लिए बी लाइक रेडी फॉर द नेक्स्ट 2 यूनिट्स एज वेल. ओके, क्योंकि एमएससी में थोड़ा रहता ही है ना, मतलब ऐसा सारा आपको ये नहीं मिलेगा. अप्लाइड, दिस इज इक्वल टू 0. क्विकली डू दिस. क्या क्या है यहाँ पे? आर है एक्स स्क्वेयर, एस है 2xy एंड टी है आपका वाई स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? आर, हाँ पहले तो ये अगर चाहिए तो पहले ये पता कर लो कि ये है क्या, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी किस टाइप के रूट्स मिलेंगे. एस स्क्वायर माइनस 4rt. अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट करूंगी. एस स्क्वायर मतलब होता है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4rt भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहा है, तो 0. मतलब पैराबोला है ना, आपको मिल गया ना पैराबोला. तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स आएंगे आपके. तो आपको एक कंफर्मेशन मिल गया क्या 2 इक्वल रूट आने वाले हैं. नाउ यू कैन इजीली फाइंड. तो क्या होता है, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0. So x square lambda square plus 2xy lambda plus y square equal to 0. This is nothing but x lambda plus y का square. Whole square ही तो है. इसको open करोगे तो you will get the same term equal to 0. So this would imply x lambda equal to minus y. तो lambda equal to minus y upon x. क्योंकि ये x square था तो दोनों टाइप पे आपको क्या मिलेगा, lambda की वैल्यू y minus y upon x ही मिलेगी. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिलती है, दैट इज dy बाय dx इक्वल, नहीं सॉरी, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0. तो दिस वुड इम्प्लाई dy बाय dx प्लस, ओके यहाँ पे तो माइनस है क्योंकि माइनस y अपॉन x इक्वल टू 0. सो नाउ यहाँ पे क्या होगा, ओके अगर आप इसको सेपरेट करोगे तो you will have what you will have dy upon dx equal to y upon x. तो क्रॉस, नो नो हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो dy बाई y इक्वल टू dx अपॉन x ही आने वाला है आपका. इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, log y इक्वल टू log x प्लस log c. So it means log y upon x equal to log c. So y upon x equal to c. So you have got this as a characteristic of, तो मतलब y equal to आपको cx मिला है. So this is your required family of characteristic curve. Is that clear? तो यहाँ पे आपको एक ही characteristic curve मिलता है क्योंकि दोनों सेम है रूट. तो दूसरा भी निकालोगे तो वही मिलने वाला है. तो इसके लिए हम एक ही रूट निकाल, मतलब रूट सेम है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों सेम मिलेंगी. तो इवेंचुअली यू आर हैविंग वन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो दिस इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. ठीक है, दैट्स इट. क्लियर एवरीवन? तो सिंपल है ना, ज्यादा कुछ है नहीं. मतलब आपको certain things you need to remember, then you need to apply the same, that we are good to go. So can we stop here now? Done na this one? Yes, ma'am, done. Okay guys, chalo fir, see you tomorrow.
इसको थोड़ा सिर्फ आपको रिविजन क्या करना है, रिविजन क्या भी करते करते ही हो गया रहेगा मुझे लगता है। एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर लेस देन 0 होता है तो इलिप्स मिलता है, ग्रेटर देन 0 होता है तो हाइपरबोला, एंड इक्वल टू 0 होता है तो, बट सिंस यू मस्ट बी स्टडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग वो रिविजन कर लेना, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो Okay, ma'am. Thank you. गाइस।